This is a huge honor for NDTV, and I think an honor that makes India proud as well. It's called Asia's Nobel, the Ramon Magsaysay Award. Of the 5 contenders, the only one, the 5 awardees, the only one from India is NDTV's Ravish Kumar. It's not difficult to see why. Take a look. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह सीरीज नौकरी पे चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी सीरीज हो सकती है। नौकरी सीरीज में हमारा सीजीएल 2016 का मुद्दा उठाया और इसके लिए मैं रवीश जी का आभारी रहूंगा। क्या आपको पता है कि भारत के तमाम कॉलेजों, स्कूलों में कितने पद खाली हैं? देश की हकीकत आपको नहीं दिखती, बात करने वाले लोग जरूर हैं। Moving now to a very special guest. In fact, I won't call him a guest because he's one of our own, one who's made NDTV and India proud today. Joining me, Ravish Kumar of NDTV India, who's just been awarded the Ramon Magsaysay Award, often known as Asia's Nobel Prize. Ravish, I'll speak to you in English because we have so many viewers in South India also who want to listen to what you have to say today. Ravish, what does this award represent for you? एक तरह का रिकॉग्निशन है, ख़ासकर एक ऐसे टाइम में जब जर्नलिज्म से जुड़े जितने अच्छे वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, वो सब डी रिकग्नाइज्ड हो गए हैं और लगातार रिडिक्यूल्ड किए जाते हैं कि आप पुराने स्टाइल की जर्नलिज्म है आपकी, ज़ीरो टीआरपी न्यूज़ एंकर हैं आप। तो इसके बीच में ये एक बड़ी बात है कि आप लगातार एक हिंदी भाषा में काम कर रहे हैं और दुनिया की नज़र पड़ती है तो अच्छा तो लगता ही है। पर आज मुझे खुद से ज़्यादा अपने दर्शकों पे बहुत प्यार आ रहा है। मेरा बस चलता तो मैं अगर कोई ऐसा वर्चुअल लड्डू होता तो मैं यहाँ से उन तक भेज देता, क्योंकि सही में इस टफ टाइम में हमारे व्यूवर्स ने हमें बहुत साथ दिया है। सो दे आर प्राइसलेस फॉर अस, फॉर मी, एंड दे आर द रियल इंस्पिरेशन फॉर मी। कि वो कहीं हिलकर नहीं गए कि, और उन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया कि यस वी नो दैट मीडिया इज गोइंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, बट कीप डूइंग, वी आर विथ यू। सो दीज आर द कॉमन लाइन्स आई कीप गेटिंग फ्रॉम द व्यूअर्स from South India also. So it's a great honor, humbling experience, you know. In TV you are nothing without team, so sometime I feel guilty that I am I have become a face of everything. That should not happen, but that's the reality, sad reality. Ravish, the point you just made also ki, you know, that zero TRPs, new India mein this journalism still has relevance, because I mean, I know in the years I've worked with you, I've heard the abusive phone calls that come to you. I've heard the people who call you anti-national, the people who say you're anti-India when you're reporting. Who are you reporting for? What is your journalism for today? मैं तो कभी एंटी इंडिया हो ही नहीं सकता, और मैं इस देश के लिए रिपोर्ट करता हूँ, इस देश के लोगों के लिए। एक बात सोनिया याद रखना चाहिए कि एक जर्नलिस्ट जब अपना वॉइस लूज़ करता है तो सोसाइटी जो है वो स्पेस और वॉइस दोनों लूज़ कर जाती है, उसके पास कुछ बचता नहीं है। इसलिए जर्नलिस्ट का बचा रहना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मेरे पास आए अपनी समस्याओं को लेकर, वो कभी बड़ी स्टोरी नहीं बन सकते थे, लेकिन जब भी मैंने उनकी स्टोरी प्राइम टाइम में की है, वो स्टोरी बड़ी हो गई है, उनकी ज़िंदगी में बड़ा चेंज आया है। जैसे एक लड़के ने लिख दिया कि हम नजफगढ़ में रहते हैं, आई लिव इन नजफगढ़, बट आई डोंट हैव ए लाइब्रेरी, एंड फॉर अ लाइब्रेरी आई हैव टू ट्रेवल फॉर 40 kilometers a day in Delhi itself. So I read that letter in my program, and MP Manoj Jha called me that
he would like to donate his fund. I don't know whether he has donated or not, but he said that he would like to donate his fund to make a library in the village of Delhi. So, so it's very pertinent to ask. Every journalist should ask that who they are reporting for. My brief is my viewers. So those who are coming to me, मैं उनका ब्रीफ होल्ड करता हूँ, गवर्नमेंट का ब्रीफ होल्ड नहीं करता मैं. So why do people think you're anti-Modi? Why do people think Ravish is relevant even when the Prime Minister has a I'm historic not mandate? anti-Modi. Modi is anti-Ravish. How Because do you know BJP has boycotted my show. They do not appear on my show. So how come मुझे बताइए कि मैं कैसे एंटी बीजेपी हो गया, एंटी मोदी हो गया. मैं तो कभी नहीं हुआ. 2014 से पहले बीजेपी के सारे बड़े स्पोक्स पर्सन इंक्लूडिंग रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर खुद ही फोन करते थे कि मुझे बुलाइए, हम आना चाहते हैं. फिर अचानक क्या हो गया? क्योंकि तब वो इसलिए बुलाते थे क्योंकि मैं पिछली सरकार से बहुत सख्त सवाल पूछता था, उन्हें अच्छा लगता था. तो मैं क्यों विरोधी होने लगूंगा? लेकिन हाँ, मेरे कुछ वैल्यूज हैं. मैं बिगटरी, कम्युनलिज्म, जेनोफोबिया, जिंगोइज्म के साथ खड़ा नहीं हो सकता. और आप इस तरह के वैल्यूज़ को आप नेशनलिज्म के कवर में आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं. ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है. जब प्राइम मिनिस्टर भी जब ऑफिशियली बोलते हैं तो वही बात बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ. वो कभी नहीं कहते हैं कि हाँ जिंगोइज्म करो. क्या बोलते हैं? ऑफिशियली कभी नहीं बोलते. ऑफिशियली वो कभी बोल ही नहीं सकते हैं. ज़मीन पे पॉलिटिक्स चाहे जो भी हो, तो पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करना, नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करना हमेशा नहीं है. और नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज ही क्यों ना किया जाए. आप जब सुप्रीम लीडर हैं, आप पार्टी के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर हैं, तो पूछा जा सकता है कि आपके होते हुए कुलदीप सिंह सेंगर 15 इतने दिनों तक पार्टी में कैसे था जबकि वो जेल में था. तो पूछा जा सकता है कि ऐसी क्या सिस्टम चल रही है कि उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है. और सिर्फ उन्हीं से नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहता हूं कि आपके यहाँ जो चिट्ठियां आती हैं उनको पढ़ने का, उनको निपटाने का सिस्टम क्या है, क्यों नहीं पता चला. तो ये ब्रांड कर दिया जाता है सोनिया कि मैं एंटी मोदी हूँ, मैं कोई वोट नहीं सीख करने जा रहा हूँ मोदी जी के खिलाफ. वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं विद ड्यू रिकॉर्ड. ऐसी बात नहीं है कि मैं भी वो समझता हूँ कि वो दायरा क्या है. तो मेरे क्वेश्चंस विथ रेस्पेक्ट शुरू होते हैं. हाँ, कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कुछ तल्ख ज़रूर मैं हो जाता हूँ कि कई बार लगता है कि क्यों किसी को भीड़ एक बन जाती है और वो घेर के मारती है. मुझे तबरेज़ अंसारी को मारने वाली भीड़ और सुबोध कुमार सिंह को, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को मारने वाली भीड़, दोनों का जो नेचर है वो एक ही तरह के पॉलिटिकल प्रोग्राम से तैयार होता है. तो मैं उसका बोलता हूँ, तो मैं एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ द डे को ही हेल्प कर रहा हूँ कि वो तो खुद क्रिटिसाइज नहीं कर सकती है, अपने नेताओं को निकाल नहीं सकती है. तो उनके ब्याह पे एक तरह से मैं काम कर रहा हूँ कि मैं क्रिटिसाइज कर देता हूँ. नहीं, तो रवीश, as we end today, both of us are TV journalists, but you said a very interesting thing a few months ago. Don't watch television. Yes. And you've stayed away from the television star system also. जो anchor system है, star system है. Who for you is the star of television या journalism today? And why did you say don't watch TV? You can say watch NDTV at least. Yes, I should have said that. पर ये ऑब्वियस बात थी कि लोग समझ जाते हैं. जी. पर जो मैंने कहा था उसका एक रीज़न था. देखिए, हम मीडिया हैं और हमारा काम है जो कमज़ोर है उसके साथ खड़ा होना. आज के टेलीविज़न में क्या हो रहा है कि एंकर जिस तरह की भाषा बोल रहा है उसका सिंटैक्स देखिए, उसके वर्ड्स देखिए, और फिर आप जॉर्ज ऑरवेल की 1984 आप पढ़ के देख लीजिए. आपको इतनी सिमिलैरिटी लगेगा कि पसीने निकलने आएंगे. और वो क्या करता है, रोज रात को ललकारता है. अपोजिशन को कहीं स्पेस नहीं है. टीवी में अगर अभी भी मीटर बाय मीटर चेक किया जाए तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपोजिशन को जितना गवर्नमेंट को स्पेस मिला उतना अपोजिशन को नहीं मिला. और हिंदी अखबारों में तो और भी बुरा हाल था कि 30-30 खबरें गवर्नमेंट की तरफ की पार्टी की छपती थी और अपोजिशन की 2-2 पार्टी की छपती थी. तो मैं चाहता था कि लोग इस बात को रजिस्टर करें. और इस बात को रजिस्टर कैसे करेंगे कि जब वो बात साफ साफ कह दी जाए कि ये टेलीविज़न जो आज का टेलीविज़न है, और मैं सिंसियरली बिलीव करता हूँ कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो हार्ड एंड डेमोक्रेसी है. किसी ने फ्री में नहीं दिया है. लोगों ने पहली बार हम नेहरू, सरदार पटेल या अंबेडकर या जितने भी आज़ादी की लड़ाई में लोग थे उनकी क्या उम्र थी, या भगत सिंह की क्या उम्र थी, 20 साल 23 साल, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब नए तरीके से एक देश को समझ रहे थे कि कैसा बनाना है. और उन्होंने कुछ वैल्यूज़
को बनाया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फिर भी स्टैब्लिश किया। मुझे लगता है कि हमारा आज का जो न्यूज़ चैनल है, चैनल्स कहिए, और वो हमारे डेमोक्रेसी को, इथोस ऑफ डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, थ्रॉटल कर रहे हैं वो। और वो बात दिखाई जा सकती है कि किस तरह से एक न्यूज़ एंकर खड़ा होकर और ललकार रहा है, उसकी भाषा किस तरह से चलती चली जा रही है। मुझे नहीं लगता कि उस एंकर को देखने वाले लोग भी अपने घर में चाहेंगे कि उनका बच्चा उस तरह से बात करे या वो अपने बच्चे से बात करे। तो डेमोक्रेसी का जो डेकोरम है, जिसमें बातचीत करने का एक अलग अंदाज होना चाहिए, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और ये काम न्यूज़ चैनल ने लाइट स्पीड से किया है, बिजली की गति से किया है। आज आपको ठीक नहीं लगेगी बात, कल आपको ठीक नहीं लगेगी, परसों आपको ठीक नहीं लगी होगी, लेकिन ये बात सही है सोनिया। No, Ravish, and I said, I know how difficult it's been. Thank you. As I said, congratulations once again. We're all Thank you. very, 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 very proud जैसा of you. कि मैंने कहा कि मैं इस NDTV में जब आया तो मैं चिट्ठियां छाटा करता था। अब मुझे बहुत सारे लोग चिट्ठियां लिखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि सारे लोग जो NDTV से चले गए आज यहाँ होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। Thank you, Dr. Pranay Roy, Radhika Roy, and all of you, those who have left us and those who are working with us. All are great. सबसे मैंने कुछ सीखा है, सबसे झगड़ा भी किया है, सबसे मैं नाराज़ भी हुआ हूँ। मैं सिर्फ अच्छी बातें नहीं करता, सबसे नाराज़ भी हूँ, लेकिन सबसे सीखा हूँ। ये घर जैसा है। मैं 1996 से यहाँ आ रहा हूँ, तो मुझे आज अच्छा लग रहा है ये मेरा घर है। Of course. Ravish, thank you once again. And thank you to all our viewers. As I said, a day of pride for all of us at NDTV. Good night.